Assalamu alaikum. This is Qasim. Previously, we completed this testimonials page that we created using a custom post type, and we did all the custom code using Chat GPT plugin. Now we are going to create a slider like this, and all that slider uh, testimonial will also we will fetch from the custom reviews post type, and then will show in the slider, right? So we are going to use a swiper jQuery plugin jQuery code, and this is the swiper documentation that you can just check from here. And these two the library that we are going to use in our slider, and this is the slider that we are going to use to show all the testimonial that we created through custom post type. We are going to create a custom shortcode again for the slider, and in that shortcode we will show and fetch all the post type. Instead of this static text, we are going to show here our post types, right? So all the post type, these are all the post type, and these are the reviews from the clients, right? So we will copy all this code and we'll go to ChatGPT and we'll ask the ChatGPT to convert this all the code into a WordPress shortcode. So let's start. Let's try this. So you can see from here started to converting this code into a short code, right? So also you can read all the description, create a new file theme, and this is a PHP file he is just suggesting and saying do exactly like this. Okay, so the all the code will be here. So we can just copy this code and we will see what error we will get, and then we'll modify that error. This is the shortcode, and we going to use in the uh, in the function.php file, right? So let's say remove this tag and this tag again. Copy this shortcode, save the file, go to the page. We will just comment this one and we'll place the shortcode here. And we will try to update the page and we'll see how it goes. If there is any error, we will fix that. So you can see slider is working, but we don't have our custom post inside this. We just wanted to make sure the slider should work. So that means our slider is working, and now we need to modify the code exactly like we did before. So again, we will go to ChatGPT. We will give full description, and we will also describe we have a custom post type. We want to get all the post type in this slider and want to show here, right? So let's change the query and see what result we get from here. So here I just change the queries. I want to show all client reviewed posts in the slider, including 5 custom fields and featured image of client reviewed post. So let's try this. So now you can see ChatGPT is creating all the custom code exactly the same that we just asked. So let's copy this code and go to function.php and paste this code exactly the same. ये हमारा जो है वो शॉर्ट कोड है, इसको हम कॉपी करके जाते हैं वापस इस पेज के अंदर और यहाँ पे हम शॉर्ट कोड ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको हम पेज को अपडेट करेंगे और हम चेक करेंगे कि कोड जो हमने कॉपी किया है चैट जीपीटी का वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अभी आप देख रहे हैं कि ऑल द पोस्ट जो है वो एज इट इज़ ही शो हो रही हैं और यहाँ पे कोई भी स्लाइडर वगैरह ऐड नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम देख लेते हैं।
फंक्शन डॉट पी एच पी। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि लाइब्रेरीज जो हैं वो ऐड नहीं हुई है इसकी। इस स्वाइपर जो प्लगइन jQuery का है, इसकी लाइब्रेरी ऐड होनी चाहिए। तो ये हमारी जो हैं वो दो लाइब्रेरीज है, ठीक है। तो दोबारा चैट जीपीटी पे हम जाएंगे और उसको दोबारा से इंस्ट्रक्शन देंगे, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि दीज टू लाइब्रेरीज मैंने यहाँ से कॉपी की हैं, ये दो लाइब्रेरीज, ठीक है। तो यहाँ पे चैट जीपीटी मैंने लिखा हुआ है, दो लाइब्रेरीज कॉपी की और कहा कि यू नीड टू इंक्लूड दिस टू लाइब्रेरी इन प्रोवाइड इन प्रीवियस कोड एज वेल। ये कोड जो है इस पे दो लाइब्रेरीज ऐड होनी चाहिए, फिर कोड जनरेट करो उसका, ठीक है। उसने दोबारा से ये वाला कोड जनरेट किया और बाकी का कोड एज इट इज़ ही था, ठीक है। अब दोबारा से ये वाला कोड कॉपी करते हैं यहाँ से और ये रिप्लेस कर देते हैं इससे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सेव करते हैं और वापस जाते हैं टेस्टिमोनियल के पेज पे। शॉर्ट कोड ऑलरेडी हमने सेम जो है क्लाइंट रिव्यू स्लाइडर के नाम से, हमने ऐड किया हुआ है। और यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि स्लाइडर शो हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखें अभी ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका कंसोल में कोई एरर होगा, इसको यहाँ पे आप देख लो। इसको रिफ्रेश करते हैं, स्वाइपर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो कोड है ये मैंने कॉपी किया, इसका मतलब ये है कि हमारी लाइब्रेरी जो है इनक्यू की हुई है उसने यहाँ पे, ये सही तरह से इनक्यू नहीं हुई। इसका मतलब ये है कोई इसका ये कोई ऊपर नीचे है लाइब्रेरी जो कि सही तरह से वर्क नहीं कर रही, ठीक है। तो इसको मैंने अगर वापस जाऊँ यहाँ पे एग्जाम्पल के जो मैंने कॉपी की थी एग्जाम्पल, अगर वो दिखाऊं मैं आपको, तो एग्जाम्पल के अंदर क्या कर रहा है, यहाँ पे देखें हेडर टैग के अंदर उसने स्टाइल शीट ऐड की हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि बॉडी टैग के बाद HTML है और HTML के बाद स्क्रिप्ट है, यानी कि जो ये वाला कोड है इससे ऊपर लाइब्रेरी ऐड करनी है हमने। और वापस हम जाते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एग्जैक्टली एज इट इज़ कॉपी करके डॉट PHP की ये वाली जो इनकी जावास्क्रिप्ट कोड है इसकी लाइन को ख़त्म करेंगे हम। और यहाँ पे इससे ऊपर जो है स्क्रिप्ट से ऊपर ये वाली लाइब्रेरी ऐड करेंगे। अब हम जाके चेक करते हैं फ्रंट एंड पे। अभी एरर जो है वो ख़त्म हो चुका है। अभी देखते हैं स्लाइडर सही से चल रहा है कि नहीं। अब ये देखें यहाँ पे ठीक चल रहा है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि नीचे पे कैरोसल आ रहा है, ये स्क्रॉल आ रहा है यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। तो ये स्क्रॉल नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये है कि ये सही से काम नहीं कर रहा, कोई इसकी CSS की मिसिंग है या कोई चीज़ मिस है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप देखें कि हमारा जो ये स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है इसमें हमारा जो रैपर है वो देखिए स्वाइपर कंटेंट कंटेनर है, स्वाइपर रैपर, और यहाँ पे स्वाइपर कंटेनर, ठीक है। तो वहाँ पे हम एग्जांपल पे देख लेते हैं क्या कंटेनर है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कंटेनर है स्वाइपर और उसके बाद माई स्वाइपर, और जो यहाँ पे क्लास लगी हुई है वो माई स्वाइपर के नाम से है, ठीक है। तो हमने क्लासें सेम रखनी है लाइब्रेरी की, ठीक है। वो उसका भी इशू हो सकता है। तो यहाँ पे ये हम एज इट इज़ माई स्वाइपर, और यहाँ पे भी माई स्वाइपर एज इट इज़ इस फंक्शन के अंदर क्लास को पास करेंगे। और माई स्वाइपर के साथ ये वाली जो है स्वाइपर, इसको भी हमने एज इट इज़ ही, ठीक है। यहाँ पे स्वाइपर की क्लास ऐड हो गई, इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद वापस गए हम यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करेंगे। तो अभी एक सेकेंड, अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये स्वाइपर और स्वाइपर स्लाइड और स्वाइपर इमेज का स्टाइल जो है वो आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे अपने एडिशनल CSS के अंदर पेस्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद जो है हमने 3 स्लाइड शो करवानी है। तो 3 स्लाइड की एग्जांपल मैं देख रहा था और यहाँ पे आप देखें 3 स्लाइड्स शो हो रही हैं। तो इसका कोड ये है, स्लाइड पर व्यू 3
और इसको हम वापस यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे और उसके बाद फ्री मोड, इसका मकसद मतलब ये है कि यूज़र एक से ज़्यादा स्लाइड को मूव कर सकता है। ठीक है, अब वापस जाएंगे और फ्री मोड भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, और अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो करंटली आप देख रहे हैं कि 3 स्लाइड शो हो रही हैं, लेकिन शुरू में देखिए एक गैप है, गैप यहाँ पे। ठीक है, तो क्या ये सेंटर्ड स्लाइड जो है इसको हम फंक्शन को डिलीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 स्लाइड आनी शुरू हो गई हैं। अब इसका हम लेआउट सेट करेंगे। ठीक है, इसका कंटेनर की विड्थ जो है यहाँ तक करेंगे और इसका लेआउट बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे जैसा कि हमने प्रीवियसली बनाया था। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इसका लेआउट जो है वो सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे इसका विड्थ इतनी है इसकी, और यहाँ पे हमने इसको मैक्स विड्थ जो है वो देनी है। मैक्स विड्थ 100%। ठीक है, अब इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे स्टाइल के अंदर ऐड करेंगे। तो अभी ये रिव्यूज का लेआउट जो है इसको हमने सेट करना है। ठीक है, अभी मैं इसका रिव्यूज का जो लेआउट है बिल्कुल वैसे ही इसको सेट करके आपको दिखाऊंगा। तो ये पुराना शार्ट कोड ग्रिड वाला जो है वो मैंने एक्टिव किया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इस तरह का लेआउट है, इस तरह का लेआउट ही हमने यहाँ पे इस स्लाइडर के अंदर शो करवाना है। ठीक है, तो सेम डिव सेम स्टाइल हम करेंगे, स्ट्रक्चर हम सेम बनाएंगे, सेम चीज़ें हम यहाँ पे इसके अंदर, ये जो हमारा ये शॉर्ट कोड बना हुआ है, इस शॉर्ट कोड के अंदर भी हमने सेम ये वाली चीज़ें कॉपी करनी है सारी। ठीक है, डेट वगैरह वगैरह जो है, डेट डिफरेंस जो हमने निकाला था, और उसके बाद फीचर्ड इमेज और सारा कुछ। ठीक है, ऑलराइट। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ बैकएंड पे करना क्या है। यहाँ पे हमने ये जो सारा कोड यहाँ पे बनाया था, ये सारा कोड कस्टम कोड जो ग्रिड के लिए हमने लिखा था, उसको हम सारे को कॉपी करेंगे यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास PHP का जो कोड है वो नीचे ये यहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है, और नीचे उसके बाद स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है HTML का। तो यहाँ पे ऊपर वाला सारा कोड हम यहाँ पे कॉपी करेंगे सारा एज इट इज़। ठीक है, और आप देखेंगे कि सेम रेटिंग भी ऊपर है, यहाँ पे आप देखो। और ये कंट्री फ्लैग नहीं था। अब उसके बाद कंट्री नेम जो है वो नीचे है। कंट्री नेम जो है, सॉरी नहीं, यहाँ पे नहीं देखना था, यहाँ पे देखना था। कंट्री नेम ऑलरेडी दिस हैव द वेरिएबल। कंट्री फ्लैग, रेटिंग, रेटिंग का भी है, क्लाइंट डेजिग्नेशन, टेस्टिमोनियल डेट, टेस्टिमोनियल डेट का भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बाकी सारे वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि मौजूद हैं। और यहाँ पे ये वाला फंक्शन नहीं था। ठीक है, टेस्टिमोनियल डेट, फीचर्ड इमेज, सेम वही कोड है। ठीक है, तो इसका मतलब है हम इसको ख़त्म कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ तक। ओके, हम ओके, मैंने फाइल जो है यहाँ से सारा कोड जो प्रीवियस वाला था वो ख़त्म करके ऊपर वाला कोड ऐड किया है। इसको सेव करके अब चेक कर लेते हैं कि कोई इशू तो नहीं है कोड में। तो इसका मतलब है हमारा कोड ठीक चल रहा है, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने नीचे वाला कोड अब सिर्फ चेंज करना है और इसका ये डिव स्ट्रक्चर चेंज करना है। तो उसके लिए यहाँ पे 1 सेकेंड, क्लाइंट रिव्यू कंटेंट, और इसके अलावा हमने क्या किया है, स्वाइपर, ये है हमारा रैपर एक्चुअली। और स्वाइपर स्लाइड जो है
इसके अंदर हमारा कंटेंट है सारा। इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। तो स्वाइपर स्लाइड हमारा जो है वो रिव्यू का बॉक्स है, रिव्यू बॉक्स है एक। उसके अंदर लेफ्ट पे उसके अंदर जो है एक डिव है जो रैपर है पूरा ये सारा। उसके अंदर हमने यहाँ पे ये जो इमेज है इसके ऊपर डिव रखेंगे सेम वही वाली, और ये हमारी लेफ्ट हो जाएगी और ये हमारा राइट वाला कंटेंट सेक्शन हो जाएगा। जैसे ये लेफ्ट इमेज और ये सारा राइट वाला कंटेंट सेक्शन, ठीक है। इसके अंदर हम सेम डिव्स वगैरह रखेंगे ताकि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सेम हो जाए। ओके, सो लेट्स गो बैक, और यहाँ पे क्लाइंट रिव्यू कंटेंट, ठीक है। क्लाइंट रिव्यू कंटेंट की हमारे पास डिव कौन सी है, ये वाली क्लाइंट रिव्यू कंटेंट की। इसके अंदर इमेज पड़ी हुई है क्लाइंट रिव्यू कंटेंट, तो ये इमेज है। इसके ऊपर हमने एक डिव रखनी है, कौन सी वाली डिव, बजाय मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी डिव हमने यहाँ से रखनी है। इमेज के ऊपर कौन सी डिव पड़ी हुई है, ये वाली, कंट्रोल सी। तो वापस जाएंगे हम नीचे, तो इस इमेज के ऊपर भी वही डिव रखेंगे जो ऊपर वाले में हमने रखी थी, ऊपर वाले ग्रिड वाले टेस्टिमोनियल के अंदर। हम अब स्ट्रक्चर सेट कर रहे हैं। इस स्ट्रक्चर के ऊपर ऑलरेडी स्टाइल लगा हुआ है इसलिए हम सेम स्ट्रक्चर रख रहे हैं, ठीक। अब ये देखें यहाँ पे ये हो गया। अब जो अगला जो चीज़ है, लेफ्ट वाला सेक्शन हो गया, राइट वाले सेक्शन में सेम हम इसको एडिट कर लेंगे। राइट सेक्शन एडिट HTML, और ये डिव हम यहाँ से कॉपी करेंगे सेम, और दे देंगे यहाँ पर एज ए रैपर कर देंगे इसको। अब इसको हम यहाँ पे बंद करेंगे। ठीक हो गया। हमारे पास ये दो पेरेंट्स, इमेज लेफ्ट और राइट वाला जो है वो सेक्शन बन जाएगा हमारा, ठीक है। इसको हम एक दफ़ा रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं नीचे, ताकि साथ साथ हम रिफ्रेश करके मेक श्योर करेंगे कि हमारी चीज़ें सही से चल रही हैं, ठीक है। आपने देखा स्टाइल ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया इस पर। ओके, यहाँ पे आप देखो कि क्लाइंट रिव्यू कंटेंट के अंदर हमारे पास जो लेफ्ट सेक्शन है ये आ गया, इसके ऊपर ऑलरेडी स्टाइल आ गया। यहाँ पे ये राइट सेक्शन, ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। अब राइट के अंदर क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, राइट के अंदर क्लाइंट रिव्यू टेक्स्ट पड़ा हुआ है, पहली डिव। अब यहाँ पे क्या चीज़ है राइट के अंदर, क्लाइंट टाइटल, ठीक है। क्लाइंट टाइटल आना चाहिए, उसके बाद क्लाइंट डेजिग्नेशन और कंट्री सेक्शन आना चाहिए। यहाँ पे क्लाइंट टाइटल जो है ये 455 शो हो रहा है, ये रिव्यू है। अब इसका टाइटल नहीं आ रहा यहाँ पे, ठीक है। टाइटल पोस्ट का टाइटल नहीं आ रहा, और ये रिव्यू है, नंबर ऑफ स्टार रेटिंग है, ये 1 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, टाइटल शो करवाना है पोस्ट का। क्लाइंट रिव्यू टेक्स्ट, अब यहाँ पे ऊपर क्या था, राइट रिव्यू के साथ ही नीचे जो थी ये वाली, अभी तो यहाँ पे देखें आप, ग्रिड वाले स्ट्रक्चर के अंदर राइट पे पहली डिव ये वाली थी, राइट रिव्यू सेक्शन, उसके बाद था क्लाइंट टाइटल की डिव, ठीक है। ये दोनों मैंने ऐड कर दी हैं, और उसके बाद जो डिव्स थी वो सारी मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी। और यहाँ पे नीचे आके ये आपने देखा कि राइट रिव्यू सेक्शन, ये वाली डिव से पहले एक और डिव थी वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दी है, और उसकी जगह पे ये वाली क्लास ऐड कर दी है, ठीक है। और उसके बाद क्लाइंट टाइटल मैंने ऐड कर दिया, और उसके बाद हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करेंगे, और यहाँ से हम ये चीज़ आउटपुट ख़त्म करेंगे। सेम ऊपर वाली सारी डिव्स मैंने कॉपी कर ली हैं, और ये सारी आउटपुट
है वो हम ख़त्म करेंगे यहाँ से। और यहाँ पे इको करवाएंगे, इस तरह इको करवा के मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे कोड की मैंने फॉर्मेटिंग सेट कर दी है। पहले जो था इको था आउटपुट के थ्रू, ये सारा जो है इसका, इसको इको लगा के बाकी जो डैश डैश वगैरह थी पहले हम पीएचपी में इको करवा रहे थे इस तरह, तो उसको सारे को ख़त्म करके मैंने ये सारा ये क्रिएट कर दिया। अब सेम ये वाली चीज़ें हैं ऊपर, ये टेस्टिमोनियल और उसके बाद ये डेजिग्नेशन, ठीक है, और उसके बाद टेस्टिमोनियल डेट, उसकी जगह हम जो है वो टाइम डिफरेंस जो है वो हमने निकाला हुआ है, ठीक है। इस तरह आउटपुट स्टार डेट है और रेटिंग की जगह है, और उसके बाद कंट्री नेम, फ्लैग, रिव्यू टाइम, टेस्टिमोनियल डेट इसमें आ जाएगी और रेटिंग इसमें आ जाएगी। और ये हमारा टेस्टिमोनियल हो गया एंड वाला ये, और ये सेक्शन कंट्री वाला आ गया, और यहाँ पे टाइटल आ गया और क्लाइंट डेजिग्नेशन आ गई, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ से हम ख़त्म करेंगे। अब चेक कर लेंगे हमारा डिव स्ट्रक्चर जो है वो ठीक होना चाहिए बिल्कुल। ये वाली डिव कहाँ पे जा रही है? ठीक है, ओके। तो इसको अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे फ्रंट एंड पे जाके। ओके, सो कंटेंट सेम हमारा ऑलमोस्ट आ गया। इमेज लेफ्ट पे टाइटल आ गया, और उसके बाद फ्लैग है, फ्लैग कंट्री नेम है, और ये सारा। अब इसकी स्टाइलिंग हम देख लेते हैं कि उसका क्या इशू है। यहाँ पे आप देखोगे कि ओके, तो ये वाला जो ये स्टाइल जो लगाया हुआ हमने स्वाइपर स्लाइड इमेज, इसकी वजह से ये जो देखो सारा इसका इशू आ रहा है। इसको हम ख़त्म करेंगे। हमने इमेज के अंदर यहाँ पे इसकी स्लाइडर की कोई इमेज नहीं है, हम इसको ख़त्म कर रहे हैं स्लाइड स्टाइल को। और अब इसको हम दोबारा से रिफ़्रेश करके देखेंगे, तो अभी जो है स्टाइल तकरीबन सेट हो गया है। अब इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग हम सेट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही लेआउट बन जाएगा हमारा। ओके, तो यहाँ पे देखें ये वाला इतना सा स्टाइल मैंने ऐड किया है, ठीक है। ये वाला जो राइट वाला सेक्शन है इसकी विड्थ थोड़ी सी कम की है, 72 थी उसको 71 कर दिया मैंने, और उसके टेक्स्ट को मैंने लाइन कर दिया लेफ्ट। तो इसका लेआउट हमारा वैसा ही हो गया जैसे पहले था, ठीक है। तो ये चीज़ है, और यहाँ पे हम थोड़ी सी इसको पैडिंग राइट थोड़ा ज़्यादा कर देंगे, लेकिन होगा नहीं, स्पेस कम है, ठीक है, ऐसे ही ठीक है। हमने यहाँ पे स्टाइल ऐड कर दिया और इसको हम रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। और हमने पैडिंग भी ऐड करनी थी ऊपर और नीचे, ठीक है। यहाँ पे मैंने पैडिंग ऐड की है ये वाली इसके रैपर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ये वाला रैपर है, इसको पैडिंग ऐड की है, कॉपी रूल। और ये देखिए अभी हमारा स्लाइडर जो है बिल्कुल वैसे ही वर्क करना शुरू हो गया जैसे कि पहले ऊपर वाली ग्रिड का लेआउट है, वैसा ही हमारा लेआउट बन गया स्लाइडर के। अब ये वाला स्लाइडर जो है हम होम पेज के ऊपर लगा सकते हैं और कहीं भी किसी भी पेज पे ये लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू क्रिएट योर ओन कस्टम पोस्ट टाइप स्लाइडर, रिव्यू स्लाइडर फॉर क्लाइंट।